Yes, hello student. Today we start with our data structures algorithm by using C++. Okay. Uh, in last lecture we already see what is data structure, what is the data type, what is the types of data structures. Then sorting techniques, what is algorithm. Just I revise it one by one topic and then we go to the next topic. The first one is algorithm. Algorithm is a finite set of instruction that is followed to complete a specific task. Okay. And this is the example of algorithm. First, algorithm always start with first step is a start, then accept the inputs, calculate or whatever the operations perform that operations, display the output, and then last one is a stop. Okay. So characteristics of algorithm, that is finiteness, definiteness, defectiveness, input and output. This is also we complete in last lecture. Then what is space complexity, time complexity, what is the best case, average case and worst case, what is symptomatic notations, in that what is big O notation, omega notation and theta notation. Okay. Now applications of data structures means where data structures is used is searching, sorting, polynomial representation of sparse matrix. This is the applications of array. Today we see in detail what is the array, how to define array, how to store data in array. We go through it in detail. First of all, we see the applications of array. The first application is a searching, sorting, polynomial representation of a sparse matrix, static implementation of data structures like stack, queue, tree, and graph. ये सब एप्लीकेशन में एरेज का यूज होता है. ओके. इन सॉर्टिंग वी see different types of sorting methods. Bubble sort, what is bubble sort, how sorting take place in bubble sort, what is the algorithm of bubble sort. Then insertion sort में कैसे sorting होता है, उसका algorithm क्या है, उसका एग्जाम्पल सी प्रोग्रामिंग में इंसर्शन सॉर्ट कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. सो टुडे वी स्टार्ट विथ searching technique. It is a second application of array. In searching, the process of locating a specific element from a set of element means एक particular element find out करने के लिए set of elements के लिए जो भी टेक्निक यूज किया जाता है उसको हम सर्चिंग टेक्निक बोलते हैं. There is a two methods of searching. First one is a sequential searching, which is also called as a linear search, and second method is a binary search. In sequential search, the searching takes place, or which method is used in sequential search to search a particular element from the list of elements. In linear search, there is a number of or a list of elements which is stored sequentially. Stores the data items like files, array and linked list. Okay. तो जो भी एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है वो हम हर एक एलिमेंट के साथ लिस्ट में से हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं, और अगर वो मैच हो जाता है तो वो एलिमेंट हमें उसकी पोजीशन मिलती है कि वो एक्चुअली कहाँ पे है. ओके. In sequential search, the procedure is the search for the key begins from the first element and continues sequentially till the element with a matching key value is found or till the end. Means जो भी element हमें search करना है वो first list में जो भी first element है उसके साथ compare करते हैं, फिर उसके बाद जो second element है उसके साथ कंपेयर करते हैं. अगर फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करने के बाद अगर वो मैचिंग
मिल जाता है तो वहीं पे जो सर्चिंग है वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर वो मैच नहीं होता है सर्चिंग की एलिमेंट के साथ, तो वो जो एलिमेंट है लिस्ट में से वो दूसरा एलिमेंट के साथ वो एलिमेंट कंपेयर किया जाता है, फिर नेक्स्ट वन, फिर नेक्स्ट वन। जब तक वो एलिमेंट फाउंड नहीं होता है तब तक ये जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू होती है till the end of list. Okay, here is an array of 10 elements. ये जो एग्जांपल है इसमें 10 एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर किए हैं array में। ये जो है a of 0 is the first element, a of 1 is the second element, a of 10 is the third element, and so on. So this is an array of 10 numbers, 10 integer numbers. So suppose the key element which is searched in this list is a 14. Now 14 is compared with first element. Okay, index a of 0 means a of 0 के साथ 14, a of 0 की वैल्यू क्या है 4, तो ये जो 4 है वो 14 के साथ मैच किया जाता है। ये इक्वल टू है क्या, नहीं, so 14 not equal to 4, so the point is move to the next location which is a of 0, sorry, a of 1. So a of 1 element is a 25. Again 14 is compared with 25. If match found, yes, 14 not equal to 25, then the position of array is moved to the next point which is a of 2. Then a of 2 is a 10. 14 not equal to 10, so again the position of pointer is moved to the next element which is a of 3. A of 3 value is a 14. 14 equal to 14 है, yes, here is a matching. So the searching stop at location a of 3. Okay, so यहाँ पे जो की एलिमेंट है वो यहाँ पे फाउंड होने के बाद आगे सर्चिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे 14 नहीं मैच होता है तो ये दिस सर्चिंग कंटिन्यूज टू द एंड ऑफ लिस्ट। Hence, the process continues for the index values 0 to 9. In array, the indexing starts from 0 to last is n minus 1. And search ends when the index between 10. This indicates that we have to finish looking at all elements in the array and the element is not found. Okay. The algorithm to search a key value in the array of n elements is given below. Okay. So this is the example of sequential search, or which is also called as a linear search. Okay. Now the next searching technique is binary search. Okay. This is a very efficient searching method used for linear and sequential search. Requirement: data has to be in sorted order. लेकिन एक जो बाइनरी सर्चिंग का जो मेन क्राइटेरिया है सर्चिंग के लिए वो क्या है कि डेटा शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, so what is the procedure followed in binary search? The procedure is that in this method the list of elements is divided into two parts. Okay, then the key element is compared with the middle element. ओके, बाइनरी सर्च में क्या होता है कि जो भी लिस्ट है, नंबर ऑफ एटम्स की जो भी लिस्ट है, दैट लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स and the key, the element which is found in that list, that element is first compared with the middle element. If match is found, the search terminates. But if the match is not found and the key is less than middle element, then the search proceed in the top to the left side, means half part जो है left part, जो भी sorting, अगर हमें एक सॉर्टिंग लिस्ट दी, सॉर्टेड लिस्ट है और हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट उसमें सर्च करना है, तो एलिमेंट फर्स्ट मिडल एलिमेंट के साथ, मिडल एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिडल एलिमेंट मिल जाएगा. सो मिडल एलिमेंट के साथ जो भी सर्चिंग एलिमेंट है वो
सर्च किया जाता है और मैच किया जाता है। अगर वो मैच हुआ तो सर्चिंग स्टॉप होता है। लेकिन अगर मिडल एलिमेंट इस सर्चिंग एलिमेंट के साथ मैच नहीं हुआ तो दैट एलिमेंट सर्चिंग एलिमेंट इज लेस देन मिडल एलिमेंट है कि नहीं ये चेक किया जाता है। ओके, अगर वो मिडल एलिमेंट से लेस है तो वो लेफ्ट साइड पार्ट में जो भी सॉर्टिंग जिस तरीके से दिया जाता है उस तरीके से अगर सर्चिंग एलिमेंट मिडल एलिमेंट से क्या है लेस है तो वो लेफ्ट पार्ट में सर्च किया जाता है। और अगर वो एलिमेंट ग्रेटर है मिडल एलिमेंट से तो वो राइट पार्ट में सर्च किया जाता है। ओके, सो इफ द की इज ग्रेटर देन मिडल एलिमेंट द सर्चिंग प्रोसीड्स इन द सेम वे in leftmost rightmost part of the list. Okay, this process continues till no more partitions are possible, means जिसमें सिंगल एलिमेंट रहता है उस टाइम तक उस लिस्ट का क्या किया जाता है, पार्टीशन किया जाता है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे उससे आपको ये कंसेप्ट क्या है वो एक्चुअली क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमें ये जो लिस्ट दी है बस यहाँ पे एल्गोरिदम दिया है। तो अगर हम एन एलिमेंट की लिस्ट है तो उसमें टॉप इज 0 एंड बॉटम इज n-1। जो दो पॉइंटर्स है जो हमने पहले से सेट किए हैं, एक है टॉप मोस्ट पॉइंटर विच इज इनिशियलाइज टू 0 एंड द बॉटम पॉइंटर इज इनिशियलाइज टू n-1। सो फाइंड आउट द मिडल। हाउ टू फाइंड आउट द मिडल? टॉप प्लस बॉटम डिवाइडेड बाय 2 is equal to the mid. So we get the middle element and now we check the middle element is A of mid is equal to key. If record found at that position, then the searching is stop here. Okay. What is the step number 10? That is a stop. Okay. But if the matching is not found here, then go to the step number 7. What is the step number 7? If key, again that key is checked with middle element whether it is less than key, then bottom is equal to mid-1 मीन जो भी मिडल एलिमेंट है उसमें से एक माइनस एलिमेंट करके जो भी पोजीशन मिलता है वो बॉटम पोजीशन सेट की जाती है। और अगर वो की एलिमेंट इस मिडल एलिमेंट से क्या है ग्रेटर है तो वो जो मिड है उसमें +1 करके जो भी पोजीशन मिलती है दैट इज द टॉप पॉइंटर। ओके, इफ टॉप इज लेस देन और इक्वल टू बॉटम देन गो टू स्टेप नंबर 5। ये ये जो प्रोसीजर है डिवाइड एंड कॉन्कर, ये प्रोसीजर तब तक की जाती है जब तक रिकॉर्ड में से सिंगल एलिमेंट फाइंड नहीं होता है। ओके, सो दिस इज कंटिन्यू टिल द रिकॉर्ड those number which is found in list तो फाइंड नहीं होता है तब तक पूरी लिस्ट क्या की जाती है, सर्च के लिए की जाती है। और ये जो मिडल कैलकुलेशन टॉप बॉटम कैलकुलेशन है वो कंटिन्यू होता है टिल द record is found. Okay, clear? So this is the binary technique. In binary technique the main requirement is that the data has to be in a sorted order either ascending or descending। बाइनरी सर्च के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी लिस्ट ऑफ ऑर्डर है वो sorted होनी चाहिए either in ascending or in descending order. Okay, clear the concept of binary search? Okay, now the next point is व्हाट इज द एरे। हमने तो एरे के एप्लीकेशंस तो देख लिए कि सर्चिंग सॉर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक क्यू लिंक लिस्ट ये सब करने के लिए एरे का यूज होता है। लेकिन एक्चुअल में एरे क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये मालूम होना चाहिए। ओके, so far we have used variables to store a single data element in memory। अगर हमें मेमोरी में
एक सिंगल एलिमेंट डेटा आइटम स्टोर करना है तो उस डेटा आइटम को हम वेरिएबल्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. ओके. However, in many applications we need to store large amount of data. लेकिन हर टाइम हम सिंगल डेटा आइटम ही मेमोरी में स्टोर करेंगे ऐसा तो नहीं है. हमें नंबर ऑफ एटम्स क्या करना पड़ता है, मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है. तो we would have to declare and use a large number of variables. So different large amount of data store करने के लिए हमें large number of variables declare करने पड़ेंगे. लेकिन these variables are independent and unrelated to each other. अगर हमें large data store करना है और लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो ऑल दीज वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. मीन्स हर एक वेरिएबल अलग रहता है और उसका दूसरे वेरिएबल के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं रहता है. ओके. लेकिन मेनी एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड मल्टीपल डेटा आइटम्स टू बी ग्रुप्ड सो दैट इट बिकम्स इजी टू मैनिपुलेट दैट. लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि उनको मल्टीपल डेटा आइटम्स मीन्स मल्टीपल डेटा आइटम स्टोर करने के लिए ग्रुप करके स्टोर करने की जरूरत पड़ती है और उनको ग्रुप में उनको मैनिपुलेट करना है. तो इस पर्पस के लिए एक स्पेसिफिक डेटा टाइप और एक जो भी कंसेप्ट दिया है स्टोर करने के लिए, ग्रुप ऑफ मल्टीपल डेटा आइटम्स ग्रुप टुगेदर, that is known as a array or structure. Okay. Now we see the definition of the array. An array is a collection of data items of the same data type referred to by a common name. Means जो भी डेटा आइटम है, जो भी सेम डेटा टाइप, मीन्स अगर हमें नंबर स्टोर करने हैं खाली, ओके, सेम डेटा टाइप जिसको हम कॉमन नेम से रेफर कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं. ओके. अगर इंडिविजुअल डेटा आइटम्स कैन बी एक्सेस बाय एन इंटीजर कॉल्ड द इंडेक्स. मीन्स इस एरे में हम इंडिविजुअल आइटम डेटा आइटम को एक्सेस कर सकते हैं by using an integer, and that part or that method is called a index or subscript. These items occupy continuous and consecutive memory locations. Means ये जो array में जो भी multiple डेटा आइटम्स सेम टाइप के जो भी हम स्टोर करते हैं उसके लिए हमें कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ती है. An array is also called a subscripted variable. What is called as an array? An array is called a subscripted variable. Okay. Here is okay. An array is a collection of elements of the same data. So definition ध्यान में रखो आप लोग array का. An array is a collection of elements of the same data type. जो भी same data type के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, एरे. ओके. द साइज ऑफ द एरे मस्ट बी गिवन ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन. मीन्स जो भी एरे की साइज है वो डिक्लेरेशन के टाइम में ही दी जाती है. ओके. तो यहाँ पे हम सिंटैक्स देखेंगे कि अगर हमें एरे डिक्लेयर करना है तो हम एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं. As we already know how to declare the variable, so here is a syntax of array declaration, and that syntax is a data type, then after that gives the name of array name, then size 1, size 2, dash size and semicolon. So data type specifies the data type of each element of the array. मीन्स हमें जो जिस टाइप का डेटा स्टोर करना है वो डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है. एरे नेम जो होगा वो वैलिड सी आइडेंटिफायर. अब लोगों को मालूम होगा कि सी आइडेंटिफायर जो है वो हम उसके रूल्स, डिफाइनिंग आइडेंटिफायर के रूल्स सबको मालूम है कि 256 कैरेक्टर्स लॉन्ग हम आइडेंटिफायर डिफाइन कर सकते हैं. उसमें खाली कैरेक्टर्स और नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, अदर स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते. तो ये सब जो सी का जो भी वैलिड आइडेंटिफायर है वो हम एज अ एरे नेम दे सकते हैं.
ओके, देन साइज मस्ट बी इंटीजर। ओके, जो भी हम साइज स्पेसिफाई करते हैं वो नंबर होना चाहिए, इंटीजर यानी नंबर होना चाहिए। ओके, सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ array defined हियर int, here we write int a of 10। इसका मतलब क्या है कि ये जो डेटा टाइप है, ये जो एरे है, वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा। उस एरे का नाम क्या है, a। और हाउ मेनी एलिमेंट्स आर स्टोर इन दैट एरे, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स ये जो एरे है वो मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ डेटा आइटम स्टोर कर सकता है, सिमिलर टाइप के, इंटीजर टाइप का। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ car नेम 80। इसका मतलब क्या है, इस एरे में कैरेक्टर डेटा स्टोर होगा और वो कितने कैरेक्टर स्टोर करेगा, तो 80 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स स्टोर्स इन दिस एरे। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज अ इंटीजर मैट्रिक्स 5 by 4। इसका मतलब क्या है कि ये हम 2 डायमेंशनल एरे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, जो 5 columns and 4 rows मीन्स टोटल 20 एटम्स, डेटा एटम्स इस एरे में हम स्टोर कर सकते हैं, जो किस टाइप के हो गए, इंटीजर डेटा टाइप। Okay, so this is the syntax of array declaration. First is a data type. After that, give the space, then array name, and mention the size of array. Okay, clear? Now, the array representation. The array physically represented in 2 ways. The first way is a row major representation, and second one is a column major representation. तो रो मेजर रिप्रेजेंटेशन जो है, द ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज रो वाइज। रो वाइज आपको मालूम है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद नेक्स्ट रो। ओके, सो रो जीरो आर स्टोर्ड फर्स्ट। रो वाइज मीन्स क्या होता है कि फर्स्ट रो स्टोर, मेमोरी में फर्स्ट रो स्टोर करने के बाद सेकेंड रो स्टोर करने के बाद नेक्स्ट एंड सो ऑन। एंड कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि डेटा जो मेमोरी में स्टोर होता है वो कॉलम वाइज होता है। मीन्स व्हाट, कि फर्स्ट कॉलम स्टोर करने के बाद सेकेंड कॉलम स्टोर होता है, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद नेक्स्ट एंड सो ऑन। ओके, so the following diagram shows the logical and physical view of 2 dimensional array। 2 dimensional array means टेबल स्ट्रक्चर आपको मालूम है, जिसमें रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो 2 dimensional array, दैट इज स्टोर अ डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। लॉजिकल व्यू, लॉजिकल व्यू कैसे रहता है कि ऊपर का जो भी कॉलम्स है, कॉलम 0, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, एंड जो भी रोज है मीन्स 0 1 2 3, ये क्या है, रोज है। तो ये लॉजिकल व्यू है। लेकिन अगर यही डेटा हम जब मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो 2 वे से स्टोर होता है। फर्स्ट वन इज अ रो मेजर एंड कॉलम मेजर। रो मेजर में क्या होता है कि फर्स्ट रो मीन्स यहाँ पे फर्स्ट रो के डेटा एलिमेंट स्टोर हो गए 1 2 3, फिर उसके बाद 4 5 6, फिर उसके बाद 7 8 9, फिर उसके बाद 10 11 12। मीन्स एक रो स्टोर करने के बाद नेक्स्ट रो स्टोर करने के बाद नेक्स्ट रो, मीन्स रो वाइज डेटा स्टोर होता है। उसको हम रो मेजर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जो भी कॉलम वाइज डेटा स्टोर कर होता है उसको हम कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 4 7 10, 1 4 7 10, फिर उसके बाद है 2 5 8 11, एंड नेक्स्ट कॉलम जो है लास्ट वन, उसके डेटा आइटम्स है 3 6 9 5। सो दिस व्यू represent the column measure representation. Okay, then how to find out the address of particular data items? Okay, suppose here we declare a 2 dimensional array int a of r and c. First size indicate the total rows and the last size. Next subscription index represent the number of columns. Okay, r means number of rows, c means number of columns, and the location of elements. If I want to access the element of array as a ith row and jth column, then how to calculate this? Address of ith
row and jth column is calculated in major row representation as a base address plus I throw into C, how many number of columns into element size plus j into element size. Okay, jth column into element size means अगर हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, बेस एड्रेस प्लस ith रो jth number of columns plus jth column into element size. Okay, so this formula is used to access the particular data item from row measure representation. अगर कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन है, कॉलम मेजर रिप्रेजेंट का यूज करके अगर हमने डेटा स्टोर किया है और अगर हमें पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट एक्सेस करना है, तो हम जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला क्या है, बेस एड्रेस प्लस jth कॉलम इनटू नंबर ऑफ रोज इनटू एलिमेंट साइज प्लस ith ith element ith number into element size. So the actual formula is a base address plus j into r plus I into element size. So this is the formula that is used to calculate the column measure representation. Data is stored in column measure representation, and if we want to access particular data item, so this formula is used. Clear? Okay. Now, suppose here is a one example which is given as consider the integer array of a of 4 3. 4 3 means इसका मतलब क्या है, 4 rows 3 columns. Okay. Now, the elements of a of 1 2 is 6. Okay, its address is calculated as shown below. Here row is 4, column is 3, I is 1, j is 2. Let's assume base address. यहाँ पे base address जो है वो हमने assume किया है कि वो क्या है, 1000 है. So in row measure representation, the address of a column, ith row and jth column is calculated as base address plus 1 प्लस 1 into 3 plus 2. इसका मतलब क्या है, इसकी टोटल वैल्यू क्या आ गई, 5 into 2 साइज ऑफ इंटीजर. अगर हम डेटा इंटीजर टाइप का डेटा मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उसको जो साइज लगती है वो है 2 बाइट्स. ओके, अगर कैरेक्टर डेटा स्टोर करते हैं तो उसको साइज लगती है 1 बाइट. अगर हम फ्लोट डेटा स्टोर करते हैं तो उसकी साइज क्या है, 4 बाइट्स. So depending on data type, the size is different. Okay, so so here we use the integer data type. So size of integer is 2. So 1000 plus 5 into 2. So this is the 1010 is the address of a a1 2 means रो मेजर रिप्रेजेंटेशन में a of 1 2 का जो भी एड्रेस है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया. ओके, and here we assume the base address is 1000. Okay. Okay, in column measure representation, address of a of 1 2 is equal to 1000 plus, here 2 is a column into 4. 4 means number of 4 क्या है यहाँ पे, number of rows plus 1 into size of integer. यहाँ पे बेस एड्रेस है 1000 प्लस 9 into 2 18. सो हमें यहाँ पे एड्रेस क्या मिला है, 1018. सो likewise we can calculate the address of particular data element. Okay, ith column and jth row. Okay, general address calculation. Suppose we can suppose we have n dimensional array stored in row measure order. अगर हमें एक 2 डायमेंशनल नहीं लेकिन n डायमेंशनल अरे अगर हम स्टोर करते हैं रो मेजर फॉर्म में, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, int a of n1 s1 s2 dash 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 sn. Okay, to access the element a of I1 and I2,
we first have to pass through I1 array of size S2 into S3 into Sn. Okay, then through I2 array of size S3, S4, S dash 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 Sn and so forth. So here base address plus ये जो फॉर्मूला दिया है इसका यूज करके हम पर्टिकुलर I1 एंड I2 कॉलम का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें n डायमेंशनल एरे मालूम है तो. ओके, सो नेक्स्ट इज अ स्ट्रक्चर्स. What is structure? As we know, the array stores the data elements group of data of same data type stored. Okay, so an array allows us to store a group of element of the same data type. यहाँ पे ये जो पॉइंट है सेम डेटा टाइप वो बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें क्या है कि एरे में हम खाली सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं एक एरे के अंदर. ओके, डिफरेंट डेटा टाइप हम एक एरे के अंदर नहीं स्टोर कर सकते. तो हर एक डेटा टाइप के लिए अगर हमें सेपरेट क्या करना पड़ेगा, एरे डिफाइन करना पड़ेगा. अगर किस कोई तो भी एप्लीकेशन में अगर हमें मल्टीपल डेटा आइटम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आइटम अगर हमें ग्रुप करना है तो ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर अलाउज अस टू स्टोर अ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एज अ ग्रुप. मीन्स ग्रुप स्ट्रक्चर का यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा आइटम्स को कंबाइन कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं. तो जो स्ट्रक्चर है उसका सिंटैक्स क्या है वो कैसे डिफाइन करते हैं. यहाँ पे देखो स्ट्रक्ट ये जो कीवर्ड है वो यूज किया जाता है. फिर उसके बाद ये जो स्टूडेंट है दिस इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर. ये यहाँ पे यूजर अपना खुद का स्ट्रक्चर नेम दे सकता है जो वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए. फिर उसके बाद हमें कौन से डेटा आइटम्स उस स्ट्रक्चर के अंदर मेंटेन करना है, इंक्लूड करना है, वो डेटा टाइप्स हमें यहाँ पे मेंशन करना है. इस स्ट्रक्चर स्टूडेंट में हमने पहले डिक्लेयर किया है कैरेक्टर. ओके, कैरेक्टर, फिर इंटीजर रोल नंबर, फिर फ्लोट परसेंट. मीन्स यहाँ पे हमने 3 टाइप के डेटा आइटम्स. जो पहला नेम एरे है वो कैरेक्टर है, रोल नंबर इज इंटीजर एंड परसेंटेज जो है जो फ्लोट कैलकुलेट करेगा. ऐसे 3 डिफरेंट टाइप के डेटा आइटम्स हमने खाली एक स्ट्रक्चर में डिफाइन किए. स्ट्रक्ट स्टूडेंट के अंदर ये 3 टाइप के डेटा हमने स्टोर किए हैं. फिर उसके बाद हमने ये क्लोजिंग ब्रैकेट दिया है और यहाँ पे सेमीकोलन दिया. सो वी कैन क्रिएट वेरिएबल ऑफ दिस स्ट्रक्चर. यहाँ पे हम इस टाइप का ये क्या है डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर. यहाँ पे हमने खाली स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है. वी कैन क्रिएट वेरिएबल ऑफ दिस स्ट्रक्चर. फिर उसके बाद हमें उस स्ट्रक्चर का क्या करना है, वेरिएबल क्रिएट करना है. एज वी नो जैसे कि हम रेगुलर बिल्ट इन टाइप का जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट इज अ डेटा टाइप एंड आफ्टर दैट द वेरिएबल नेम. सिमिलर वे वी कैन डिफाइन द वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर. The syntax for that is a struct स्टूडेंट एंड वेरिएबल नेम. यहाँ पे स्ट्रक्ट क्या है, स्ट्रक्चर कौन सा है, स्टूडेंट. ओके, फिर उसके वेरिएबल का नाम क्या दिया है यहाँ पे, student1 कॉमा student2. सो वी डिफाइन 2 टाइप्स 2 वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसमें नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज स्टोर होगा स्टूडेंट 1 का, और student2 अनदर स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज स्टोर करके. ओके, क्लियर. जरा स्ट्रक्चर मेंबर जो भी हम स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, 3 डिफरेंट डेटा आइटम्स के डेटा आइटम्स यहाँ पे डिफाइन किए. तो अगर हमें ये डेटा आइटम्स इंडिविजुअली एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर का यूज. अगर हमें स्टूडेंट जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है स्ट्रक्चर स्टूडेंट का, उसका यूज करके अगर हम स्ट्रक्चर के डेटा एलिमेंट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, stud1 विच इज द नेम ऑफ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट. फिर उसके बाद डॉट लिखना है और उसके बाद नेम ऑफ डेटा आइटम, नेम ऑफ द वेरिएबल.
First variable is a name, second variable is a roll number and third variable is a person. यहाँ पे देखो stud1 dot name, stud2 dot roll number, stud1 dot person, ऐसे लिख रहा है. अगर they can be read and display by using the scanf and printf functions. ये हम access read कर सकते हैं by using scanf function and डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग printf function. Okay, so this is the declaration syntax of structure. Then self referential structure क्या होता है? Self referential structure, the structure contains the pointer to itself, means जो structure हम define करते हैं उसमें खुद उसी टाइप का एक जो structure create होगा उसको pointer define किया जाता है. Okay, these type of structures are widely used in data structure like linked list, trees, etc. Okay, और दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो डिफाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर. ओके, यहाँ पे देखो ये जो नोड है ऊपर हमने जो यहाँ पे क्या किया? स्ट्रक्ट नोड. यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया है? नोड. ओके, इसमें हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है और उसके बाद स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट. इसका मतलब है कि हमने ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसका पॉइंटर यहाँ पे स्टोर करेंगे. ओके, सो स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, ये जो है ये क्या है? पॉइंटर डिक्लेरेशन. पॉइंटर डिक्लेरेशन, पॉइंटर मीन्स क्या होता है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल which stores the address of next variable. Okay, here look at here the structure of this जो अभी हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? जो वन पार्ट है वो इंफॉर्मेशन और इंटीजर नंबर स्टोर करेगा और जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसी टाइप के मीन्स इसी स्ट्रक्चर नोड का जो भी नेक्स्ट पार्ट रहेगा, नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसको क्या करेगा? पॉइंट आउट करेगा. ओके, पॉइंट आउट करने के लिए जो उसका एड्रेस है, इसका एड्रेस क्या है? 1550. वही एड्रेस किस में स्टोर होगा? इस नेक्स्ट पार्ट में स्टोर होगा. ओके, क्लियर how to define the self structure? Okay, now the next part is a polynomial representation using array. Polynomial representation यूज रिप्रेजेंटेशन करना है लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरे का यूज करना पड़ेगा. एज ऑल वी नो एरे स्टोर्स द element of same data types. Okay, so polynomial is a mathematical expression of more than two algebraic terms, especially the sum of several terms that contains the different power of one or more variables. Polynomial क्या होता है? It is a mathematical expression है जिसमें two algebraic terms use किए जाते हैं, the sum of several terms that contains the different powers of one and more variables, like this 2x4 plus 3x2 minus 10. Okay, so this is the polynomial. यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, फिर उसके बाद ये जो x है वो पावर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पॉलिनोमियल्स आर फ्रीक्वेंटली यूज इन several application, various operation like addition, evaluation, finding roots, etc. तो ये करने के लिए हमें polynomial यूज करना पड़ता है. In order to perform operations, the polynomial has to be represented in some way. Since a polynomial contains one or more terms, we can use an array to represent the polynomial. Okay. However, each term contains a coefficient and an exponent. Okay. Hence, we use a two-dimensional array to represent the exponent and coefficient. Okay. यहाँ पे P32 का मतलब क्या है? 3 rows 2 columns. Okay. यहाँ पे देखो ये जो है क्या रिप्रेजेंट किया? मीन्स कौन सा भी पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करने के लिए टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा. उसमें फर्स्ट जो
नंबर है वो रो नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड जो नंबर है वो नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें 7x4 प्लस 3x2 माइनस 10 अगर रिप्रेजेंट करना है, तो जो फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट है वो हम 0 p of 0 0 are the coefficient and exponent respectively of the first term। जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है उसमें जो फर्स्ट कॉलम है p of 0 0 वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट, एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो स्ट्रक्चर पॉलिनोमियल का ये स्ट्रक्चर, अगर हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना है इसके लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, struct poly is a name of structure. In that poly structure we define the two integer type of variable. First one is a coefficient and second one is a exponent. So this is the declaration of structure poly. Okay, so p of 0 represent the coefficient and p0 of 1 represent the exponent. Okay, polynomial evaluation. Polynomial evaluation means finding the value of the polynomial by evaluating each term. Means अगर हमें पॉलिनोमियल इवेल्युएट करना है, मीन्स क्या करना है कि जो भी हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मीन्स क्या करना है कि उसमें जो भी टर्म्स दिए है, मीन्स अगर यहाँ पे 7x4 प्लस 3x2 माइनस 10 ये पॉलिनोमियल दिया है, और अगर हमें x की वैल्यू 2 दी गई, तो हम ये पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 2 रेस टू 4 प्लस 3 इंटू 2 रेस टू 3 माइनस 10। सो आंसर क्या आ गया, 114। So to evaluating the polynomial, here is the algorithm, and that algorithm is start first accept the n terms of polynomials। इन polynomial expression में कितने terms आने वाले हैं वो accept करना है। उसके बाद accept the value of variable। After that initialize the two variable, first variable is a I0 and second variable is a sum। After that check whether I is less than n। जब तक I less n से लेस है तब तक हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोएफिशिएंट एंड पावर ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसको कैलकुलेट करके वो एक वेरिएबल में ऐड करते जाना है, और जो भी लास्ट में जो भी सम मिलेगी हमें वो क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। सो जो भी सम में जो भी वैल्यू होगी वो हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल algorithm to calculate the polynomial of evaluation. Okay, here is the algorithm to perform the addition of polynomials। अगर हमें दोनों polynomial expression दिए हैं और उनका addition हमें perform करना है, तो जो प्रोसेस फॉलो करना है उसके लिए ये algorithm दिया है। Here 7 into x raised to 4 plus 3 into x raised to 2 minus 10 and 5 x raised to 3 plus 6 x2 plus 4। सो अगर हम इस टू पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 7x4 प्लस 5x3 प्लस 9x2 माइनस 6। ओके, सो ये जो टू पॉलिनोमियल्स है उनको ऐड करने के लिए हमें ये जो अल्गोरिदम्स है, ओके, जिसमें हमने टर्म्स पॉलिनोमियल दोनों टर्म्स एक्सेप्ट किए हैं, फिर उसके बाद हर एक टर्म को और एक दूसरे पॉलिनोमियल टर्म के साथ क्या किया है, ऐड करके लिया है। तो फॉलो दिस अल्गोरिदम टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। ओके, सो अप टू नाउ आपको ये तो क्लियर होगा कि व्हाट इज एरे, हाउ टू डिफाइन द एरे, एंड स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज कैसे कर सकते हैं, एंड पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरे। ओके, क्लियर? सो टुडे वी स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।